You're always your closest to your first break, because if that doesn't happen, then you don't get any opportunity. So I think my first billboard was in '91. I saw myself as Raymond the Complete Man. Atul Kasbekar had shot those images. Bombay was filled with these big hoardings playing Raymonds, and which I shot with them for 5 years. अभी ऐसा माना जाता है यार कोई टेलीविजन से आता है तो ट्रेन एक्टर हो जाता है. हाँ. अच्छा है. Because of the discipline and schedule involved. Yeah, not only the discipline, schedule, time frames. समय नहीं मिलता उन लोगों को और बहुत सारे सीन्स करने पड़ते हैं. लाइनों में अच्छे हो जाते हैं, मेमोरी बहुत अच्छी हो जाती है, कैमरा की अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट क्लोज की अच्छी हो जाती है. स्कूल बस में हम लोग जाया करते थे, स्कूल बस मिस हो जाती थी तो डीटीसी बस में जाना पड़ता था. घर पे बता नहीं सकते थे. मुझे अभी भी याद है ₹1 की टिकट आती थी उसमें, डिलक्स वाली में, और जो दूसरी होती थी उसमें 50 पैसे की. तो कई बार ₹1 भी नहीं होता था. द जर्नी हैज़ बीन ऑफ लर्निंग, बिकॉज मैं कभी कोई ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं फिल्म स्कूल का प्रोडक्ट हूँ. मैं वो फॉर्चुनेट और लकी लोगों में से हूँ जो कि ग्राउंड पे उतर के सीखें on the job. I've been very fortunate to work with 29 national award winners during this journey of 150 plus films. Hi, this is Rahul Dev और सनी जी शो जो कि सुभजीत घोष का शो है YouTube पे, उसको देखिएगा. कुछ इंटरेस्टिंग वार्तालाप. Like, share and subscribe right now. Thank you so much and give him all the love. Ladies and gentlemen, versatility जो एक word है, it's dynamic in its own ways. A lot of people strive to become that, but it's not everyone's cup of tea in the true sense of the term. And versatility भी अगर आप अलग-अलग languages में करो तो फिर वो उसको heroism, machoism in every way you can call that. A fantastic journey which started with modeling way back in the 90s. He's still ruling the hearts in every way, with multiple facets of his personality coming forward on screen. The one and only Rahul Dev, sir. It's an honor and privilege, sir, to have you. Sir, it's wonderful. I mean, all those kind words. Thank you very much. Pleasure, sir. Pleasure. Like I said, of journey that started with modeling, and I saw some of your pictures were going viral from the 90s, and there have been 24, 25 almost successful years that you have had. You've seen everything in the industry, the changing trends, evolution of new platforms, etc. सबसे बेस्ट फ्लैशबैक्स अपनी जिंदगी में अगर करियर के मैं पूछूं वो क्या रहे in all these years? You're always your closest to your first break, because if that doesn't happen, then you don't get any opportunity. So I think my first billboard was in '91. I saw myself as Raymond the Complete Man. Atul Kasbekar had shot those images. Bombay was filled with these big hoardings playing Raymonds, and which I shot with them for 5 years. The campaign was called Complete Man. So वहाँ से शुरुआत हुई. कॉलेज में होर्डिंग शो देखते थे, लगता था यार ये. I remember ad from Benzer. That guy used to look like me, but he was from Italy. तो मुझे लगता यार ये तो मेरे जैसा लगता है, but मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो ऐसा माइंड में कुछ था नहीं. How nice. So I think that, and then of course my first film break, the late Mukulanand ji, he offered me Das. We went to Utah, Salt Lake City, 40 days. Film unfortunately didn't see light of day because he had a heart attack. After coming back, nobody could complete it. But again, if it was not for him, and if it was not for the kind of grooming, the kind of schooling he put me through, क्योंकि ना वो बिल्कुल अलग अलग, अभी मॉडलिंग का रिक्विजिट ही बिल्कुल अलग है. और उस जमाने में ऐसा भी बोला जाता था यार ये मॉडल्स बिल्कुल वुडन होते हैं, ये नहीं कर सकते, हिंदी तो बोलनी ही नहीं आती इन लोगों को, यार दिल्ली का आदमी है क्यों नहीं बोलेगा हिंदी. वही ना. सो इट यूज्ड टू बी लिटिल स्ट्रेंज, बट एक जनरलाइज कर देते थे जस्ट बिकॉज देयर वर कपल ऑफ पीपल फीलिंग आवाज ठीक नहीं होती. अभी मुझे लोग कहते हैं यार ये हमारे लिए डब करो, आवाज है. तो नहीं मेरे बारे में नहीं कहते, एक जनरल एक कंसेप्शन था मॉडल्स की. करेक्ट. और उस टाइम पे ऐसे भी था कि टेलीविजन इंडस्ट्री अलग होती थी, मॉडलिंग इंडस्ट्री अलग होती थी, फिल्में अलग हुआ करती थी. तो जो मूवीज में होते थे लोग वो मूवीज करते थे, जो टीवी भी अगर आपने गलती से कर लिया फॉर द ऑड जीनियस लाइक शाहरुख खान, देन एंड ऑफ स्टोरी.
आप अभी ऐसा माना जाता है यार कोई टेलीविजन से आता है तो ट्रेन एक्टर हो जाते हैं. हाँ. अच्छा है. Because of the discipline and schedule involved. Yeah, not only the discipline, schedule, time frames. समय नहीं मिलता उन लोगों को और बहुत सारे सीन्स करने पड़ते हैं. लाइनों में अच्छे हो जाते हैं, मेमोरी बहुत अच्छी हो जाती है, कैमरा की अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट क्लोज की अच्छी हो जाती है. Yeah. So a lot of things you get to learn on. It's like a learning ground with getting paid in it. क्या बात है. I think that's the cherry on top, of course. In Griha Lakshmi, if I particularly talk about, you're playing a cop, and of late, आपके roles where you've played a cop that have worked very, very well. If I talk about Hunter and other projects as well, Yeah. भले वो grey shade हो, black and white हो या जो भी हो, Rahul Dev has as a cop character has worked, right? You think Griha Lakshmi is going to be an extension of that success? I mean, I'm really hoping to because बिल्कुल sincere है Tokus अपने efforts में. He's IPS. My late father was a very very exemplary cop in real life. तो मुझे ऐसा लगता था बहुत अजीब यार जब हम सिनेमा देखते थे और जो रिप्रेजेंटेशन देखते थे पुलिस वाले का कि यार ये घूस लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. मैं बिल्कुल एक मध्य वर्ग से हूँ. स्कूल बस में हम लोग जाया करते थे. स्कूल बस मिस हो जाती थी तो DTC बस में जाना पड़ता था. घर पे बता नहीं सकते थे. मुझे अभी भी याद है 1 रुपए की टिकट आती थी उसमें, डिलक्स वाली में. Yeah. और जो दूसरी होती थी उसमें 50 पैसे की. तो कई बार 1 रुपया भी नहीं होता था तो 50 पैसे की टिकट में जाना पड़ता था. और वो मैं क्रिकेट खेला करता था दिल्ली स्टेट के लिए. बैग स्कूल का बड़ा, साथ में क्रिकेट बैग, वो बैग अलग. तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर घर देखें एक पुलिस वाले का, मेरी माँ ने सारी उम्र काम किया. लास्ट ईयर वी लॉस्ट हर अनफॉर्चुनेटली. शी वाज अ टीचर, देन रिटायर्ड एज अ प्रिंसिपल. So 2 earning salaries for 3 people, 3 children. Just about हो जाता गुजारा. After my dad retired from services, he was 58 at retirement. He worked for 23 years with American Express as a consultant on security. To just because he needed to work. Financially, he needed to work to get us all through school, college, all of that. तो मैं उस किस्म की फैमिली से हूँ. ऑफ कोर्स एजुकेटेड बिकॉज माय मदर वाज gung ho about education, so she put us in the best schools possible. I went to Columbus, was lucky. तो बट जब मैं देखता हूँ कि तो इसमें टोकस में एक क्लीन शेप रखा है उसे. यूनिफॉर्म उसकी सही है, जो सितारे होने चाहिए, जो विसल का रंग होना चाहिए, जो शेर होना चाहिए उसका. The emblems we've been careful of thanks to my late father. And the kind of everyday आप देख रहे हैं पुलिस वाले को घर से जाते हुए. He was very particular about uniform, about his timing. And a couple of times as a child I've observed that he was very secretive. वो ऑफिस घर पे नहीं लाते थे, और लाते थे तो वो उन्हीं तक रहता था. I remember not seeing him during Indra Ji's assassination. लोग हमसे पूछ रहे थे क्या होगा 17 दिन, हमने लोगों को पता ही नहीं हमारे पिता कहाँ हैं. और those were the days of no mobile. Communication was a challenge. So communication was a huge challenge, and the way he was with his job, तो बताता ही नहीं थे. तो मुझे याद है एक ही बार मैंने उन्हें अनशेप देखा है, और वो समय था जब वो वापस आए थे. तो बस यही यार. तो अभी I've tried to within the framework of the logistics of the writing, which is commercial. Within the framework of looking at it from a woman-centric perspective, कि यार एक गृह लक्ष्मी है, नौकरानी का काम कर रही है, और she is so smart. मतलब frankly यार बहुत से criminals हम लोगों ने जिनके बड़े बिल्ला रंगा होते थे उस टाइम पे किडनैप करते थे. The police brought him down and they were hung at the gallows. So उस फैमिली से हूँ. मुझे नहीं लगता कि हमारी पुलिस इनकेपेबल है या कुछ भी है. कई बार हो सकता है the structure sort of doesn't allow you. The structure does not allow you at times. I remember एक बार खैर कई किस्से याद हैं. Yeah, of course. You spoke about how it has been an extension, right? The most wonderful thing, and I was telling one of my friends over here as well, is that key
for such a long time to be relevant and constantly working and in different without getting stereotyped. I think the most important thing वो रहा है आपके करियर का हाईलाइट, which I feel, and ये जो पैन इंडिया वर्ड आजकल लोग बहुत पॉपुलरली बोलते हैं, पैन इंडिया, आई थिंक यू आर वन ऑफ द पीपल who has actually been pan India even before pan Indian as a word became popular. आपने साउथ में भी धमाल मचाया है. Thanks for noticing that, यार. I mean, South में I worked with Mr. Rajamouli, 33 Telugu films, 34 actually. The one we working on the 34th. Yeah. After a big gap, I'm doing it because बड़ा मुश्किल होता था यार. एक क्लास हम लोगों ने, मुकुल आनंद जी's blessing to me was this class called Gibberish. The wonderful painter साहब had taken that class. Mime artist हैं हिंदुस्तान के बहुत अच्छे, और of course we have seen him entertaining people in comedy. तो वो gibberish में होता था कि nonsensical words में ना express करना होता था और एक scene को बताना होता था. Correct. तो 22 बच्चे थे क्लास में. मुझे अपनी सिचुएशन अभी तक याद है. वो एक ट्रेन की पटरी पे हाथ पांव बांध के रख दिया है, ट्रेन आके गुजर जाएगी और आपको भूखे नंगे हैं, आप बड़े दिनों से आपको खाना वाना नहीं मिला हुआ, तो एक्सप्रेस करते हुए आप कोई भी अंडरस्टूड वर्ड नहीं यूज कर सकते, कनेक्टिंग एंड द ये भी नहीं यूज कर सकते, और वो कुछ भी नहीं, और आपको बस लास्ट मोमेंट पे बचना है और ट्रेन से. तो ना तो ट्रेन थी क्लास के अंदर, ना ही मतलब यू नो. तो वो मुझे याद है. तो वो क्लास का फायदा ये हुआ मुझे कि जब ये पहला कॉल आया था मुझे तेलुगु से, जो कि अब मैं दिल्ली से हूँ यार, तो दिल्ली में ऐसा माना जाता था कि मतलब हमें पता होता था उस वक्त 22 स्टेट्स होते थे, अब 29 हो गए हैं, बट पता तो होता ही था यार, यू आर एजुकेटेड इन अ स्कूल दैट हाउ मेनी स्टेट्स एग्जिस्ट. बट एक दिल्ली की मेंटालिटी ये थे यार कि महाराष्ट्र के नीचे सारे मद्रासी हैं. You know, there are 4 different states now. 5. Correct. You know, because Andhra has been broken up into 2. तो तमिल होती है, तेलुगु होती है, और भाषाएं तो और भी बहुत सारी है, क्योंकि तुलु भी है जिसमें फिल्में कम बनती हैं, कन्नड़ है जो सडनली मार्केट बहुत बढ़ गई है, मलयालम में मैंने आई बीन लकी इनफ टू वर्क इन 6 फिल्म्स, 2 मोहनलाल जी के साथ. तो great experience here. Even of late, I believe North में Punjabi movies as well. You've done quite well. Last year, historical projects. Gippy had offered me something. Gippy के साथ पहले भी एक फिल्म मैंने की हुई है, जो उनका फिल्म फेयर वो होता है PTC, तो उसके लिए अवार्ड मिला था. मिर्जा एक कहानी है पंजाब की फोक स्टोरी, उसके ऊपर वो फिल्म बनाई थी. भाई और बहन के प्यार की कहानी, where the sister ditches the brother, ditches the lover for her brother. वो भाई बहन का नॉर्थ का ना, वो जैसे इराकी जिस पे बेस्ड है, तो वैसा वाला किस्सा था. How nice. तो बाकी यही है यार कि the journey has been of learning, because मैं कभी कोई ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं फिल्म स्कूल का प्रोडक्ट हूँ. मैं वो फॉर्चुनेट और लकी लोगों में से हूँ जो कि ग्राउंड पे उतर के सीखे. On the job. I've been very fortunate to work with 29 national award winners during this journey of 150 plus films. तो सीख रहे हैं यार अभी टोकस के लिए. अभी सिंस द OTT केम इन, आई बिकेम अ लिटिल रिलक्टेंट टू वर्क डाउन साउथ, क्योंकि मैं प्रोडक्ट हूँ कमर्शियल लार्जर देन लाइफ सिनेमा. करेक्ट. तो वही होता ना, ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड. हमें ऐसा लगता था यार कि थोड़ा एक रियल स्पेस को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा तो अच्छा है, होता था ना जी. तो वो अभी OTT की वजह से वो स्पेस. But abhi last year again the audience is saying कि यार we want larger than life entertainment, because eventually it's entertainment. And about Griha Lakshmi, what I'll find very interesting is, ठीक है, it's women centric, but if you see the trend on OTT is a lot of women centric products go well with the audiences, simply because और क्या होती है women empowerment in the sense कि अगर आप देखें कि यार एक नौकरानी है, वो कैसे कॉमन सेंस से अपनी लाइफ को लीड कर रही है और कैसे वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर रही है, और उसकी लाइफ में फिर क्या उथल पुथल होती है बिकॉज ऑफ द वेरियस फैक्टर्स. शी एक्सीडेंटली गेट्स इन. उसका एक ब्रदर इन लॉ है जो उसे हेल्प कर रहा है, फिर ये कॉप आ जाता है उसकी लाइफ में जो उसे शुरू में लगता है कि शी इज जस्ट, और फिर बाद में जाके कहीं पता लगता है कि यार शी इज नॉट व्हाट शी लुक्स लाइक. उधर एक लार्जर देन लाइफ डॉन है जो चंकी कर रहे हैं, उधर उस डॉन का प्रतिनिधि इधर है एक वजीर सॉर्ट ऑफ से देवेंद्र जो कर रहे हैं. तो अलग अलग एक्टर्स, अलग अलग उनके एक्सपीरियंसेस, सो सबके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला. सो इट वाज अगेन लर्निंग आई थिंक. एंड व्हाट आई मस्ट अप्रिशिएट इज माय डायरेक्टर, वंडरफुल गाय,
and my creative director was sitting over there actually, not because he's sitting over there I'm saying so. और इनके साथ एक अर्पिता दास थी, जिनकी वजह से मैं शो में हूँ, so I'm very thankful to her. So I'm happy that the show बिल्कुल ब्रेकनेक स्पीड में हम लोगों ने किया, बिल्कुल अगेंस्ट टाइम, क्योंकि फिल्म से ना हम लोग आराम से काम करते हैं, मतलब कंपेयर टू द स्पीड ओटीटी में बजट्स नहीं होते हैं, तो हल्द्वानी में शॉट डिसमेंटल हो रहा है और अगला लग रहा है, तो कभी कभी लगता था यार कि, और डायलॉग जो मेरा जो राइटर था उमंग वो देता था हिंदी में, अब टोकस के लिए हमने पकड़ा था यार कि हरियाणवी में बोले, तो इतनी कठिनाई ये होती थी कि यार डायलॉग तो बिल्कुल हिंदी में शुद्ध, करेक्ट, और बोलना उसको हरियाणवी में, तो यार मैं तो राइटर हूं नहीं, है ना, तो वो एक कठिनाई थ्रू आउट एसिंग टोकस रही, बट वो बेचारा भी ठीक ही है क्योंकि वो यूपी का है, और यूपी के आदमी अगर हरियाणवी लिखेगा तो बहुत आउट ऑफ, कम से कम मैं दिल्ली से हूँ तो हमारा गुड़गांव साथ में है, हाँ, वो रीजन इज देयर, नहीं, और गुड़गांव में सब जाट और गुजर है, और सारा बहुत पैसा भी है उनके पास, बिकॉज़ ऑफ थैंक्स टू डीएलएफ एंड थैंक्स टू द लैंड गोइंग क्रेजी. सेकंड लास्ट क्वेश्चन इफ आई मे आस्क, वो ये रहेगा सर कि हर एक इंसान के जिंदगी में, लाइक पर्सनली फॉर मी एज वेल, एवरी इंडिविजुअल हैज दैट कंप्लीट लिसन टू योर हार्ट, करो दिल की मर्जी मोमेंट, राइट? आपके जिंदगी में वो मोमेंट क्या रहा है वेयर इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ एडवाइसेस एंड सजेशंस दैट यू हैव गॉट फ्रॉम द क्लोजेस्ट पीपल अराउंड यू, you actually listen to your heart and it eventually proved to be a very good decision in your life? We are coming to Bombay. I was already married, है ना, तो ट्रेंड एक्टर तो हो नहीं, एक ब्रेक मिला था मुकुल आनंद जी, पता नहीं ऐसा इंस्टिंक्टिवली, माय लेट वाइफ, आई हैव टू थैंक हर मोस्टली फॉर दिस. रीना, वंडरफुल वंडरफुल वुमन, 1 साल बड़ी थी मेरे से, तो अकल मेरे से बहुत ज़्यादा थी और बहुत ही सपोर्टिव थी. तो आप सोच लीजिए कि जो भी सेविंग्स थी मॉडलिंग की, आई रिमेंबर द प्राइस ऑफ माई फ्लैट, तो वो सब बेच बाच के वो एक फ्लैट ले लिया कि चलो यार दिल्ली से हैं, एटलीस्ट रेंट नहीं देना पड़ेगा. बट ऑन हाइंडसाइट जो हो गया, मगर विजडम टुडे वुड बी टू बी ऑन रेंट. आई मीन योर जनरेशन डेफिनेटली यू नो लुक्स एट प्लेइंग द मार्केट एंड दिस दैट एंड द अदर. तो वो दैट वाज वन बिग डिसीजन. आई वाज अ क्वालिफाइड इंजीनियर, अच्छा काम कर रहा था, इनफैक्ट उससे पहले काम छूट गया था मॉडलिंग के, और दूसरा ये जो मॉडलिंग वो एकदम रेमंड्स आया और जॉब छोड़ दिया चौथे महीने में. टाटा बिग कॉल. तो वो दो चीजें ना, रिस्क जब आया था यहाँ, और जो माहौल था मॉडल्स को लेके एक्टिंग में कि वुडन होते हैं, काम नहीं आता, एक्टिंग नहीं कर सकते, आवाज बड़ी फालतू होती है, हिंदी तो आती नहीं इन लोगों को, पता नहीं अंग्रेज के बच्चे हैं, तो ये सब ना एक दो सीनियर्स हमारे एक्सेप्ट नहीं हुए, ऑन टॉप गाइज. तो आई वुड लाइक टू नेम देम, इट्स नॉट नाइस बिकॉज इट्स जस्ट अबाउट प्रिपरेशन. अबाउट द प्रिपरेशन आई हैव टू थैंक मुकुल आनंद जी, बिकॉज यू नो वो उनको पता था कि आटा दाल किस भाव में मिलता है. सर आपके 90s के फोटोज देखे मैंने, कुछ दिन पहले भी मैं देख रहा था इंटरनेट पे. आई एम श्योर अलग लेवल का फीमेल अटेंशन उस टाइम पे भी, अभी भी मिलता है, उस टाइम पे और ज्यादा धमाकेदार मिलता होगा, राइट? उस टाइम पे हाउ डिड यू हैंडल द फीमेल अटेंशन? I was already married. I was very much in love with my wife. 6.5 years of courting and then उसके माँ बाप को जाके, उनके फादर अनफॉर्चुनेटली आफ्टर एंगेजमेंट चले गए थे, तो that family was very kind to me, is still kind to me, very supportive. So एक बिल्कुल फोकस था कि यार we have to marry her, ये होना एक पार्टनर. तो ऐसा कभी हुआ नहीं यार, frankly ना. मतलब बेसिकली फीमेल अटेंशन था, आपने ध्यान नहीं दिया बिकॉज आपका फोकस ये भी था कि इतना पता भी नहीं लगता था. आई एम फ्रॉम अ ऑल बॉयज स्कूल, तो ना इतना अवेयरनेस कैसे बताऊं यार. अभी आई एम बेसिकली वेरी शाय. अभी इतने साल काम करने के बाद इतनी सब बात कर सकता हूँ, मगर जब आए थे नए तो बात तो करनी नहीं होती थी, क्योंकि खाली फोटो ही खिंचवानी होती थी. तो इट्स आउट वेल. So last question जो मेरा ये रहेगा कि you mentioned about when you came to Mumbai at that point of time, it was a huge risk, right? I can call it pretty much a gamble at that point of time, but the risk paid off. And I feel that in your career trajectory, there have been many more moments where you have taken risks and more often than not they have paid off. आपके जिंदगी में ये जो risk taking ability and hunger जो रहा है, do you think that with
सक्सेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड हंगर और बढ़ गया था आपकी जिंदगी में इन अ गुड वे? यार आई कांट से दैट, क्योंकि जैसे जैसे लाइफ में सर्कमस्टांसेस, आई रिमेंबर आफ्टर वी लॉस्ट माय वाइफ टू कैंसर, आई कंप्लीटेड 13 फिल्में कंप्लीट करनी थी, तो 2009, 10, 11 में वो कंप्लीट की। उसके बाद मुझे लगा मुझे काम नहीं करना चाहिए यहाँ पे, so I left the business and I went back to Delhi for 4.5 years. My son was very small. And you had a very, I mean, not the best period in terms of movies and. नहीं था नहीं ना. I was saying no to everything coming my way because I was a full-time parent. मेरा अभी he was in class 6 that time. और तब ऐसे मैं बात भी नहीं करना चाहता था मीडिया में, क्या समझाने की बात होती है, you know the families are affected on both sides. No, if you go and clarify that, listen, I don't want to work, और ये मैं इंटरव्यू कर दूँ इसका, बहुत ही एक तो चीप लगता है, अनडिग्निफाइड लगता है पर्सनली इतना शेयर करना। अभी ये सब बातें मैं आराम से कर सकता हूँ बिकॉज अभी 2009 और 24 में 15 साल का फासला गया है। यू ऑल्सो लिटिल मैच्योर्ड आउट। लोग बहुत इरिटेट भी होते होंगे कि यार हम इसे फिल्म दे रहे हैं क्यों नहीं कर रहा है। हर किसी को समझाने का ना उस वक्त रुझाव भी नहीं होता था कि यार अभी कैसे समझाएं उसको कि So I just left the city. The place we kept, it was unopened for about 4-5 years. But आपके उस टाइम पे रिश्ते बिगड़े थे because you were saying no to people? यार मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने उस वक्त इतनी मुसीबत में था कि मैं क्या पता करूं कि यार तेरा तू कैसे तुझे लग रहा है। मुझे पहले खुद अपने उसका फिक्र था ना बेटे का कि क्या करना है। It's like वो बोलते हैं ना फ्लाइट में कि पहले you know वो भी नहीं कर सकता था मैं बिकॉज वही जो फ्लाइट वाली बात कर रहे हैं ना, मास्क लगाना, मुझे पेरेंटिंग आती नहीं थी क्योंकि उस टाइम पे काम अभी भी ऐसे ही है। अभी जैसे गृह लक्ष्मी को ले लीजिए, हमने पूरी शूटिंग की है हल्द्वानी में, ये तो चलो हल्द्वानी है। उस टाइम पे बहुत ओवरसीज जाते थे हम लोग, अमेरिका। माय फर्स्ट आउटडोर वाज 10 कश्मीर की कहानी है। यूटा सॉल्ट लेक सिटी गया था मैं, इट वाज अ 24 आवर फ्लाइट, क्योंकि वो सेट लगाया था उन्होंने वहाँ पे कश्मीर का। यहाँ कश्मीर में शूटिंग पॉसिबल नहीं थी उन दिनों में, राइट। तो वो लॉजिस्टिक्स की वजह से जब आप आएंगे वापस, तो अगर यहाँ पे कोई भी पेरेंट है तो समझ सकता है कि उस स्टेज में ना when they are 6, 7, 8 and 9 every 2 months they are changing rapidly. तो मुझे ऐसा लगता था पेरेंटिंग का मतलब यार चलो ये ड्यूटी फ्री से कुछ सामान ले लेते हैं, चॉकलेट्स, which is wrong because you are just indulging and giving a wrong habit and then later on you go to crib, why are you having chocolate? How sweet. No, it's genuine. Yeah. No, I mean, see, a lot of parents have an issue with, I mean, I have an issue. I mean, I love exercising. I think you must, but if you're inculcating and giving out a wrong habit, just because the situation is such, or just because you are missing the other person, are you getting it? Yes. It's not responsible parenting. Right. It's irresponsible parenting. So, वो तुक्के बहुत लगा रहे थे, and then luckily for me, I met my master. I met him on the 19th of July 2013. You've done your research well. तो तरनेब जी मुझे दिल्ली एयरपोर्ट में मिले थे. From then on, I got a second sort of say leash of life. He came and he immediately told me कि यार तू बना ही इसके लिए और तुझे ये काम करना चाहिए. और तब बिग बॉस 80 फिल्म करने के बाद मैं गया था करने के लिए. आप समझ सकते हैं. और मुझे कुछ आइडिया नहीं था और उनका एक इमेज था कि कोई तगड़ा आदमी है, मारेगा. मैं वैसा हो ही नहीं है. तो you know, you actually surprised in the positive way. No, it wasn't because it was not making up for good TRPs. Because they paid me so much money and you know I was not performing from their point of view. Yeah, correct. So I mean they want ढूंढा वैसे चाहिए और अपने को आता नहीं है ऐसा. Thank you so much, guys. That was Rahul Dev sir on the Sunny G Show on my YouTube channel Shubhajit Ghosh. इनके बहुत सारे projects future में भी आएंगे, लेकिन as of now we're talking about Griha Lakshmi only on Epicon. 16th January is the date. उसके बाद से देखो, उसके पहले तो नहीं देख सकता. I know the excitement is there, but उसके बाद जरूर देखो. जिसके साथ भी देखना है देखो and give him all the love that he deserves because he definitely deserves all of it. And थोड़ा सा प्यार I want to distribute from my end. Sir, I've got a gift hamper for you. So ये I hope you will actually. Thank you so much. Pleasure, and I wish you all the best for everything, sir. Thank you. Guys, that's a wrap on the Sunny Z Show. This is your host Shubhajit. We'll be back soon with another interesting episode. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe, and thank you.